পরিবর্তন মন্ত্রকের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনি আমাদের মাঝে আছেন। তিনি মূল বক্তব্য রাখবেন আজকে আপনাদের সামনে। কিন্তু যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আমাদের বিরোধী দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস যে মিথ্যাচার করে, সেই মিথ্যাচারের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে জানানো আমাদের কর্তব্য। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমি আজকে কয়েকটি তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। যে বিরাট কাজ নরেন্দ্র মোদীর আমলে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, তা 5-7 মিনিটে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি কয়েকটা জিনিস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। প্রথম কথা বলা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে আমাদের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, এত টাকা পায় এত টাকা পায়। এবার দেখি যে বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের আগেও বলেছি আবার বলছি। আপনারা জানেন যে ট্যাক্স কালেকশন হয় তার একটা অংশ ট্যাক্স ডেভলিউশন হিসেবে রাজ্য সরকারের কাছে ফিরে আসে, সব রাজ্য সরকারের কাছেই যায়। ইউপিএ আমলে এই রাজ্য থেকে যে ট্যাক্স যেত, ইউপিএ আমলে মানে কিন্তু প্রথম 5 বছর ইউপিএ 1, দ্বিতীয় 5 বছর ইউপিএ 2। ইউপিএ 1-এর সদস্য কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসও ছিল। তারপরে ইউপিএ 2-র সদস্য তারা থাকেনি, কিন্তু তাদের বন্ধু সরকার ছিল। সেই সময় 1.34 লক্ষ কোটি টাকা তারা ট্যাক্স ডিভলিউশন হিসেবে পেয়েছিল 10 বছরে। 1.34 লক্ষ কোটি টাকা। এবার নরেন্দ্র মোদী বঞ্চনা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনুসারে। তাহলে দেখা যাক নরেন্দ্র মোদী কত দিয়েছে তার 10 বছরে বা 11 বছরে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার 5.24 লক্ষ, 1.34 নিজেদের আমলে পেয়েছিল তারা, আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার দিয়েছে 5.24 লক্ষ। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা নিশ্চয়ই অঙ্ক জানেন, তবু আমি শিখিয়ে দিচ্ছি ভুলে গেলে পরে। 4 গুণ বেশি টাকা নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই 10 বছরে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়েছে অ্যাজ ট্যাক্স ডিভলিউশন। অর্থাৎ যে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় বলেন আমাদের এখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র, আমাদেরকে দিচ্ছে না, কিন্তু তথ্য কিন্তু উল্টো কথা বলছে। এর সাথে সাথে গ্র্যান্ড ইন এইডস বলে একটা হেড আছে, সেই হেডেও কেন্দ্র সরকার টাকা দেয়। সব কেন্দ্র সরকারই রাজ্যগুলোকে দেয়, সব রাজ্যগুলোকে। গ্র্যান্ড ইন এইডস তাতে 75,000 কোটি টাকা ইউপিএর সময় পেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের নিজেদের ভালোবাসার পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের এই রাজ্য। নরেন্দ্র মোদী খুব বৈমাত্র্য সুলভ আচরণ করে কত দিয়েছেন বলুন তো? 75,000 ইউপিএর সময় পেয়েছিলেন 10 বছরে, আর সেখানে নরেন্দ্র মোদী বৈমাত্র্য সুলভ আচরণ করে দিলেন 3 লক্ষ কোটি টাকা। কোথায় 75,000, কোথায় হচ্ছে 3 লক্ষ কোটি, আবার 4 গুণ বেশি ইউপিএ সময়ের থেকে। এই যে বিপুল পরিমাণ টাকা কেন্দ্র সরকার বারবার পাঠিয়েছে, এটা যদি টোটাল যোগ করা হয়, ইউপিএ আমলে তৃণমূল কংগ্রেস বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেয়েছে হচ্ছে 2.09 লক্ষ কোটি টাকা, আর মোদিজির আমলে পেয়েছে 8.27 লক্ষ কোটি টাকা। 2.09, 8.27 লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়াও আমরা যদি এক একটি করে হেডিং আসি, 2-4টি উল্লেখ করছি, সময় নেই। জাতীয় সড়ক খড়গপুর শিলিগুড়ি ইকোনমিক করিডোর, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, 61,000 কোটি টাকা তার জন্য বরাদ্দকৃত হয়েছে। 2028 সালের মধ্যে এই প্রকল্প শেষ হবে, এবং এই প্রকল্প শেষ হলে বা এই প্রকল্প চালু হয়ে গেছে, এখন যদি রাজ্য সরকার একটু যদি প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনে, একটু যদি শিল্প বান্ধব পরিবেশ নির্মাণ করতে পারে, শিল্প আসতে বাধ্য পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটা পারছে না। তারা করাপশন, অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স, ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে এবং তার মধ্যে দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স করে তাকে জড়ো করে, তাদের ভোটটাকে জড়ো করে ভোটে জেতার মন্ত্র নিয়ে তারা এগোচ্ছে। তার ফলে মুর্শিদাবাদের মতো ঘটনা ঘটছে। কলকাতার বুকে কলকাতার রাস্তা রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা কলকাতায় আছি নাকি ঢাকাতে আছি। উনি বলেছিলেন কলকাতাকে উনি লন্ডন বানাবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কলকাতা লন্ডন হয়নি, কলকাতার রাস্তা ঢাকার মতো দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। 30,000 কোটি টাকা ব্যয়ে 520 কিমি দীর্ঘ
শিলিগুড়ি থেকে গোরখপুর গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে, মানে একদম নতুন ভাবে তৈরি হবে। আগেরটা যেটা বললাম অলরেডি রাস্তা আছে, তাকে বড় করা হবে, তাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি করা হবে, কিন্তু এটা পুরোটা হচ্ছে গ্রিনফিল্ড, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে আগামী দিনে শিলিগুড়ি বা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ এবং অন্যান্য অংশকে এর সাথে যুক্ত করবে। 2027 সালের মধ্যে এটা আমরা পূর্ণ করব, এটা আমরা কমপ্লিট করব। 2014 থেকে 21 সাল এর মধ্যে 10,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে 1,000 কিলোমিটার এনএইচ এই রাজ্যে তৈরি করা হয়েছে। আমি শুধু এনএইচ এর কথা বললাম, এরপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে আদার্স যে স্টেট আছে 5,000 কোটি টাকা ব্যয়ে এনএইচ 81, যা আসাম এবং মেঘালয়কে আমাদের কলকাতার সাথে যুক্ত করবে। 2,000 কোটি টাকা ব্যয়ে এনএইচ 116B ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, কলকাতার সাথে সংযোগ হবে এবং তার লাভ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এই সমস্ত জেলাগুলো পাবে। 2,000 কোটি টাকা ব্যয়ে এনএইচ 12 100 কিলোমিটার ফারাক্কা রায়গঞ্জ যে সেকশন, তাকে 4 লেনে করার ব্যবস্থা এই আমাদের সরকারের আমলে হয়েছে। যদি রেলওয়েতে যায়, ভারতবর্ষে এই রেলওয়েতে রেকর্ডকালীন কাজ হয়েছে। 64,000 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় 4,660 কিলোমিটার এবং 45টি নতুন রেল প্রকল্প। 1,300 কিলোমিটার নতুন ট্র্যাক নির্মিত হয়েছে, যা একটা দেশের সমান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দেশের পুরো রেল ট্র্যাকের সমান, সেটা 1 বছরে আমরা করেছি। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম বহু প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের জন্য এসেছে, সে মেট্রো থেকে শুরু করে হোক বা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হোক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে 61খানা রেলওয়ে প্রজেক্ট, 61 railway projects, those have been stalled due to the land acquisition problem created by the West Bengal government. দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের দ্বারা তৈরি করা সমস্যার জন্যই এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের এখানে কাজগুলো হচ্ছে না। আমাদের যে মেট্রো রেলের কথা বলি, স্বাধীনতার আগে যতটা মেট্রো সংযুক্ত হয়েছিল, আমাদের সরকার স্বাধীনতার পর কলকাতাতে ততটা মেট্রোর কাজ করেছে। 300 কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি অর্থাৎ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্টেশনে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিমানবন্দরে আসি, আরো অনেক কাজ, আমি কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি। 400 কোটি টাকা কলকাতা বিমানবন্দরের জন্য উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়েছে। 700 কোটি টাকা মডেল যে দুর্গাপুরে অন্ডাল যে বিমানবন্দর, সেই বিমানবন্দরের জন্য দেয়া হয়েছে। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, মানে সব থেকে বেশি টাকা যেখানে দেয়া হয়েছে, বাগডোগরা এয়ারপোর্টের ডেভেলপমেন্ট, সেটা বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল। 1,550 কোটি টাকা বাগডোগরা বিমানবন্দরের জন্য কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া মৎস্য পালন, কৃষি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার একের পর এক উন্নয়নের কাজ করে গেছেন এবং এই রাজ্যকে কোনোভাবে বঞ্চিত করা হয়নি। ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প যদি বলেন, যেটা 2028 সালের মধ্যে কমপ্লিট করব আমরা ঠিক করেছি, সেখানে 2.5 হেক্টর জমি সেচ করা হবে এবং তাতে সেচের ব্যবস্থা হবে এবং 130 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প সেখানে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সবসময় কেন্দ্রের সাথে বিরোধিতা, এই মানসিকতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু এই অ্যাডভান্টেজগুলোর বা এই লাভগুলো সব তুলতে পারছে না। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাজেটে প্রধানমন্ত্রী মুফ বিজলি ঘর যোজনা আছে। আপনি যান পশ্চিমবঙ্গের যেখানে সিএসসি আছে, সেখানে এই ভর্তুকি পাচ্ছে, ডাব্লিউবিএসসি ডিসিএল এ পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে মানুষ তার বাড়ির ছাদে সোলার ইনস্টলেশন করে, সোলার প্যানেল ইনস্টলেশন করে নিজের বিদ্যুৎ খরচ তো কমাতে পারেই, উপরন্তু যদি বিদ্যুৎ বেশি হয়ে যায় তাহলে সেই বিদ্যুৎ কোম্পানিকে সেটা ফেরত দিয়ে সেখান থেকে রোজগারও করতে পারে, কৃষকরাও সেটা পারে। এই ধরনের বহু প্রকল্প এসেছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না কারণ মাননীয় মন্ত্রী আছেন, অলরেডি আমি 6 মিনিট টাইম নিয়েছি। আমি কয়েকটি আপনাদের সামনে আলোকপাত করলাম, কিন্তু আমার মনে হয় এই ডেভেলপমেন্ট, এই উন্নয়ন তখনই হবে যখন কোনো জায়গায় শান্তি থাকতে পারে, কোনো জায়গায় ল অ্যান্ড অর্ডার থাকতে পারে। একের পর এক যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, অ্যাপিসমেন্ট পলিটিক্সের মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদের যে ধরনের ঘটনা ঘটলো, সেখানে কোনোভাবে আপনি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক, সোকল নাগরিক, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, তাকে দেখা যাচ্ছে তিনি বাংলাদেশে শেখ হাসিনা হটাও অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। তো রেকর্ড, কোনো রাজনৈতিক দল এটা করতে পারেনি। আমাদের সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা থাকে, কার্যকর্তা থাকে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কার্যকর্তা ভারতবর্ষে কোনো রাজনৈতিক দলে নেই। একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস এই রেকর্ড করেছে যে তাদের কর্মী পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলন করে তৃণমূলের হয়ে, আবার বাংলাদেশে গিয়ে শেখ হাসিনাকে হটানোর আন্দোলন করে। ইন্টারন্যাশনাল কার্যকর্তা, ইন্টারন্যাশনাল কর্মী একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস করেছে এবং সেটা হয়তো সেই আফসোস থেকে করেছে, রাষ্ট্রীয় দলের মর্যাদা যেহেতু বিঘ্নিত হয়ে গেছে, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল দল হবে তারা, সেই মানসিকতা নিয়ে তারা এগোচ্ছে। এইভাবে চললে পশ্চিমবঙ্গ আগামী দিনে ঘোর অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। সমুদ্রের মধ্যে সব থেকে গভীর স্থান আছে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ,
পশ্চিমবঙ্গকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে পাঠাচ্ছেন। বিজেপি এসে সেই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের রাস্তা থেকে আগামী 26শে নির্বাচনের পর বিজেপির সরকার গঠিত হবে এবং তারপরে সেই ম্যারিয়ানা ড্রেঞ্চ থেকে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গকে আবার উন্নয়নের পথে আনবো। মোদিজির বিকাশের মডেল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের মডেল হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে মোদিজির সরকার এখানে গঠন হবে। সবাইকে নমস্কার। আমি মাননীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য এই বাজেট নিয়ে রাখার জন্য। धन्यवाद डॉक्टर सुकान जी। मंच पर उपस्थित मेरे साथ ज्योतिर्मय महतो जी, तुषार कांति जी और कोलकाता के सभी पत्रकार साथियों, जब भी कोलकाता आना होता है तो भावनात्मक रूप से, इमोशनली बहुत खुशी होती है, क्योंकि कोलकाता की धरती पर उतरने पर इस बात का एहसास होता है और इस धरती को प्रणाम करने का मन होता है, क्योंकि बंगाल आधुनिक भारत के साइंस, आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी और राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत रहा है। बंगाल की धरती श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। 1857 के आजादी के पहले उद्घोष के साथ आजादी तक बंगाल देश के लिए प्रेरणा स्थली हमेशा बनी हुई है। बंगाल के आर्ट और लिटरेचर में ये ऐसी धरती रही है जहां पर नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में भी मिला, उसी समय साइंस में भी मिला, और आजादी के बाद भी सत्यजीत राय जैसे बड़े फिल्म मेकर भी बंगाल में रहे। आज भी हम देश का राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, उसका जन्म भी बंगाल से हुआ है। एक समय कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन इस भावनात्मक खुशी को देखने के बाद दुख होता है। कोई 6 महीना ऐसा नहीं जाता है जब ममता बनर्जी जी के राज में महिलाओं पे अत्याचार ना होता हो। हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा की वायलेंस की घटनाओं में वापस से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ममता बनर्जी जी के शासन को माना जाता है कि ममता बनर्जी जी का शासन जो याद किया जाएगा कि ममता बनर्जी के शासन में क्या हुआ, तो एक काले अक्षरों के साथ लिखा जाएगा, ममता बनर्जी के शासन में संदेश खाली की घटना हुई। वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसकी नैतिकता से नहीं भाग सकती। जिस बंगाल ने इतनी ऊंचाइयों को छुआ, ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी जी के शासनकाल में
शिक्षा में क्या हुआ, तो ये लिखा जाएगा कि टीएमसी गवर्नमेंट के समय में एसएससी एग्जाम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और 26,000 से ज्यादा स्कूल टीचरों को जॉबलेस किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट कह रही है कि बंगाल में 2 लाख करोड़ रुपए के सरकारी कार्यों का वर्क कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेशन भी नहीं दिया गया। ये पैसा गया कहां? इसको लूटा किसने? ये बंगाल की दुर्दशा करने का जिम्मेदार कौन है? और मैं सच कहूं, मेरे जितने भी बंगाली दोस्त हैं, दिल्ली में या देश में मेरे को मिलते हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि ममता बनर्जी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन बंगाल में हो रहा है। मैं पूछता हूं कारण क्या है? तो टीएमसी के समर्थित माफिया, सरकार की अजीबोगरीब लैंड पॉलिसी और एंटी बिजनेस नेचर जो सरकार का बना है, उसके कारण से बंगाल में ये ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हुई है। मैं नहीं मानता कि कोई महिला के शासन में इतनी अमानवीयता हो कि संदेश खाली जैसी घटना हो, हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे रॉइट्स हो, स्कूलों की भर्ती के घोटाले के लिए हाईकोर्ट का हस्तक्षेप पे हस्तक्षेप हो, कुशाग्र और बुद्धिमान लोग छोड़कर जाने को मजबूर हों, और नीयत इस प्रकार की हो कि अगर केंद्र सरकार गरीबों के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना को ला रही है तो उसे लागू न किया जाए। हमारे जंगल महल के एरिया में जो रहने वाले ट्राइबल हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना लागू की जाए तो उसको लागू ना होने दें। हमारे उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के और पूरे मालदा से लेकर के सब जगहों पर अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसा कार्यक्रम हो तो उसके भी 90,000 करोड़ रुपए को जमीन पे न लगाया जाए। और ये बात प्रारंभ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के सुशासन का ब्यौरा आपको पेश करने आया हूं। केंद्र सरकार ने 11 वर्षों में एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ शासन किया है। हम सब जानते हैं कि 11 साल पहले हिंदुस्तान दुनिया की 5 डगमगाती हुई फ्रेजाइल इकोनॉमी में था। फ्रेजाइल इकोनॉमी माने लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, बिजनेस को असुरक्षित मानते थे, क्लियरेंस नहीं होती थी, पॉवर्टी थी। इस सब को समाप्त करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था ये केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को बनाया है। आप पूछो, एक समय में देश की कारें कलकत्ता में बना करती थी, आज क्या स्थिति है? आज हमारे बंगाल की स्थिति ये करी कि बंगाल में गरीबी का ये जवाब सरकार नहीं दे पाई है, और दूसरी तरफ देश में एक संकल्प से, एक विजन से हम हिंदुस्तान को 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से निकाल करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सके हैं। दूसरा, गवर्नेंस में सुशासन को लेकर के आए।
सुशासन का अर्थ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग को केंद्र सरकार लेकर के आई। जन विश्वास बिल जैसा बिल सरकार लेकर के आई और अनावश्यक जो क्रिमिनलाइजेशन था हमारे एक्ट के माध्यम से उसको समाप्त करने का काम किया। आप में से बहुत सारे पत्रकार 2012 से या 2010 से 2014 को कवर करते थे, तो कभी इनके डीएमके के साथी जेल में होते थे, कभी पवन बंसल के ऊपर आरोप लगता था, कभी किसी पे आरोप लगता था। और हिंदुस्तान में मानो सरकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं चलाते थे, हिंदुस्तान में सरकार कोई एडवाइजरी काउंसिल चलाती थी जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी होती थी। पर 11 साल में ये जो गवर्नेंस की दुर्दशा थी इसको सुशासन में बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यही कारण है कि हम देश की योजनाओं में ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, करप्शन को समाप्त करने में कामयाब हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश में लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले और हमने केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद करनी चाहिए थी उसको किसी भी प्रदेश में रोका नहीं। प्रदेश की सरकार ने जरूर रोका। आपने देखा होगा एम्स कल्याणी में शुरू किया गया, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, पूर्वा एक्सप्रेसवे शुरू किया गया। मुझे ध्यान है कि मैं 86 में या 89 में मैं परिवार के साथ आया था पुरी और कोलकाता घूमने, स्टूडेंट था। तब हमने कलकत्ता में मेट्रो को देखा था, सुना था। आज हम मेट्रो का एक्सपेंशन नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो का एक्सपेंशन किया। कलकत्ता का जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम टीएमसी की सरकार ने किया। वरना कलकत्ता तो एक समय में ट्राम भी चलती थी, मेट्रो भी हो गई थी, बस सर्विस भी बढ़िया थी, टैक्सी भी बढ़िया थी। पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट को ध्वस्त करने का काम यहां किया गया। अगर 11 साल में आप देखेंगे मोदी जी के कार्यकाल में बहुत चीजों पे जहां हम इंपोर्ट करते थे, विशेष रूप से डिफेंस के प्रोजेक्ट्स में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिला और हम एक आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल को डिजिटल इंडिया के रूप में महसूस किया जाएगा। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के डिजिटल एजुकेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। जबकि एजुकेशन से लेकर के व्यापारिक लेन देन में सरकार की योजनाओं को आगे पहुंचाने के लिए जनधन, आधार और मोबाइल जैसा नरेंद्र मोदी जी एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात है कि देश ने इन 11 वर्षों में 500 साल पुराने विवाद को सुलझाते हुए राम मंदिर का भव्य निर्माण होते हुए देखा है। धारा 370 को समाप्त करके जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का नारा हम लोगों को दिया, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया और भारत की एकता के लिए हमको अपने जीवन का बलिदान देकर भी संदेश दिया। हम बंगाल की पावन धरती को भी नमन करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सपूत और नेतृत्व इस देश को देने का काम किया, उस 370 को समाप्त करने का काम किया।
जिस यूपीए सरकार को ममता जी भी समर्थन करती थी, उस समय आतंकवादी आते थे, अपना घटनाक्रम करके चले जाते थे। लेकिन आज सिंदूर ऑपरेशन ने वापस से दिखाया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि अगर हमारा दुश्मन भारत में किसी प्रकार की नापाक हरकत करेगा तो उनके घर के अंदर घुसकर मारने की ताकत ये भारत रखता है। ये दुनिया को दिखाने का काम किया है। और इसलिए 11 वर्षों की यह यात्रा एक विकासशील भारत से विकसित भारत की यात्रा है। और विकसित भारत में जैसा मैंने बताया, केंद्र सरकार ने बंगाल में एम्स दिया, एक्सप्रेस वे को बनाने का काम किया। जो रेलवे स्टेशन पुराने होते थे, आपने अभी हाल ही में देखा होगा, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशनों को जैसा रीडेवलप किया, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर देने का काम किया, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन अलीपुरद्वार और कूच बिहार में क्लीन, सेफ और चीप गैस सप्लाई के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है। और इसलिए हमने एक बंगाल के रोड मैप को भी प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है। और उस रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए आज बहुत सक्रिय, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता है। केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना, केवल महिलाओं पे अत्याचार करना, बंगाल से ब्रेन ड्रेन होने देना, ये सरकार के जो कुशासन की नीतियों का परिणाम है, उसको बदलना आवश्यक है। और 11 वर्षों में देश ने भरोसा किया कि मोदी है तो मुमकिन है। और राजनीति अब केवल प्रदर्शन की संस्कृति पे नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत वाली राजनीति है। हमें ऐसा देश चाहिए जहां पर विरासत भी हो और विकास भी हो। हमें एक ऐसा देश चाहिए जिसमें महिलाओं की भागीदारी विकास के केंद्र में हो। हमें ऐसा देश चाहिए जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता हो। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में इन सारे लक्ष्यों को भारत ने प्राप्त करने का काम किया है। आज डिफेंस सेक्टर में हमारा 30% एक्सपोर्ट बढ़ा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ई नीलामी जैसे गवर्नेंस के मॉडल को लेकर के सरकार आगे बढ़ी है। 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। मैं तो जलवायु मंत्री हूं। पेरिस समझौते के बाद भारत ने दुनिया को जो अपने एनडीसीज दिए, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, उसमें कार्बन एमिशन कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो लक्ष्य भारत ने दिए, वो समय से 9 साल पहले पूरे किए। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और इसलिए सरकार ने 11 वर्षों में अपनी सरकारी योजनाओं की निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल ऑडिट जैसे विषयों को गवर्नेंस में आगे बढ़ाया है। हम सब जानते हैं 21 जून को योग दिवस आने वाला है। एक समय बंगाल की महान विभूति महर्षि अरविंद, परमहंस योगानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, भारत सेवाश्रम के स्वामी प्रणवानंद जी, ऐसे महापुरुषों ने भारतीय योग के पुनर्जागरण में जो एक योगदान दिया, जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया, आज उस सारे विषयों को पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो 11 सुशासन के साल हुए हैं, इसमें बंगाल की जनता का जो हमेशा से सकारात्मक सहयोग रहा है, केंद्र में हमारे सांसद चुन के आते रहे हैं, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हम ये संकल्प भी करते हैं कि आने वाले समय में बंगाल में भी मोदी जी के नेतृत्व में
विकास की रफ्तार और गति को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका एक जो विस्तृत विवरण है ये भी आपको हमारे पार्टी के साथी उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, এবার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, ওনার বক্তব্যের পর আপনাদের জন্য কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। नमस्कार। हाँ, वेलकम टू कोलकाता। तो Thank you. आपको ये सवाल है मेरा कि नेक्स्ट ईयर यहाँ का जो विधानसभा है, यहाँ का जो माहौल है, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा या नहीं, आपको क्या लगता है? पॉसिबल है? इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए हमारी संस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ, मैं सुदीप बोल रहा था दूरदर्शन न्यूज से। जी। मंत्री जी, दो प्रश्न है। एक है पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपका क्या टिप्पणी होगी, एक ये है। और दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जो टिप्पणी की थी, वो जब प्रधानमंत्री इधर बंगाल में दौरा कर रहे थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये दो प्रश्न है। थैंक यू। मैंने पहले ही कहा है और आपने मेरे विषय को सुना भी होगा कि ममता बनर्जी जी का जो शासनकाल है उसका जो पोस्टर है वो संदेशकाली है। उसका जो पोस्टर है वो हाल ही की मालदा की घटना है, मुर्शिदाबाद की घटना है। कोई पोस्टर बॉय होता है, ये उनका असली जो प्रशासनिक विफलता है वो उनकी ये है। और ऑपरेशन सिंदूर में आज भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को हुआ है। पूरी दुनिया में ये बात बहुत स्पष्टता के साथ आई है कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। और भारत का जनमत भी पूरी दुनिया के सामने गया है। मैं तो यही देख करके आश्चर्यचकित हूं कि देश के सभी राजनीतिक दल भारत के विषय को रखने के लिए प्रतिनिधिमंडल में विदेश गए। भारत का विषय रखने में ममता बनर्जी की पार्टी को क्या दिक्कत थी भाई? भारत का विषय तो बंगाल से ही पहचाना जाता है। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता और समय आने पर बंगाल की जनता इसका पूरा जवाब देगी। सर, मैं मनोज पांडे, न्यूज 24 से। सर, ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, कहीं न कहीं सेना ने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है, सेना को श्रेय इसका जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी इसकी राजनीति कर रही है और बंगाल में 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उनमें जनता के बीच में अपने इसका क्रेडिट लेना चाहती है। और यदि ऐसा है तो चुनाव कल कराए, उसके बाद देख ले कि कैसा है, कौन जीतता है। क्या कहेंगे सर 2026 के चुनाव को लेकर? नहीं, बंगाल में तो डिस्क्रेडिट ही है टीएमसी, क्रेडिट का है टीएमसी को। कोई जो कारनामे उन्होंने किए हैं अपने पिछले 3 समय के कार्यकाल में, उसको बंगाल की जनता माफ नहीं करने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पे सारी राजनीतिक पार्टियां एक मत एक साथ होकर विदेश में प्रतिनिधिमंडल के रूप में गई है। टीएमसी अपनी इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी से क्यों भागी भाई? ये तो उन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मंत्री जी से एक सवाल है। अनुपम बोल रहा हूं आज तक से। प्रदूषण के मुद्दे पर अगर हम देखें तो AQI अगर देखें तो भारतवर्ष के कुछ शहर दुनिया के सबसे ज्यादा AQI वाले शहर हैं। प्रदूषण के मामले में बहुत ज्यादा प्रदूषण, वेहिकुलर अगर प्रदूषण की बात करें। दूसरा, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी आपने काफी कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी प्लास्टिक का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। इसको लेकर कुछ नए उपाय या किस तरह से ये प्रदूषण भारतवर्ष में जो है कम करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमने देश के 131 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी को चुना है। उसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनकैप करके प्रोग्राम चलाया है।
हमने म्यूनिसिपैलिटियों को आमंत्रित किया है, एनकैप की क्षेत्रीय वर्कशॉप करी है। प्रदूषण का जो सबसे पहला कारण है वो व्हीकल पॉल्यूशन है। जैसे दिल्ली में हमने पेट्रोल की क्वालिटी को सुधारा है, जो कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए बाहर बाईपास बनाए हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें दी गई हैं। कुल मिलाकर के अब 2700 बसें बाकी शहरों में भी आएंगी, कलकत्ता में भी आएंगी। तो हमारा सार्वजनिक परिवहन में पेट्रोल की क्वालिटी में सुधार, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, कमर्शियल व्हीकल को बाईपास से बाहर निकालना, हाइड्रोजन बसें, इलेक्ट्रिक बसें। दूसरा, एनसीआर के क्षेत्र में हम लोगों ने जो एनसीआर के क्षेत्र में इंडस्ट्री है उसको पीएनजी पे लेके गए हैं, ताकि पीएनजी पे ले जाने से उनमें जो कोयले वगैरह का प्रदूषण है वो कम हो। तीसरा, जो सबसे बड़ा शहरों में चुनौती है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है, और जो लीगेसी वेस्ट है उसको समाप्त करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन लाइफ है, उस मिशन लाइफ में भी 7 चीजों पे जोर दिया जाता है: सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट डिस्पोजल, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ई वेस्ट के लिए भी हम लोग ईपीआर पॉलिसी को लेकर के आए हैं। जो क्षेत्र जिनके कारण ज्यादा पोल्यूशन आने वाला है उसके लिए हम रेगुलेशन लेके आए, यूज्ड ऑयल उसमें है, और 120 mm से कम जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हमने बैन किया। मैं पत्रकारों को भी कहना चाहूंगा, ये जैसे इधर लगे ये गुलदस्ता है, अब इस पे प्लास्टिक की पन्नी लगाने का क्या उपयोग है? या शादी का मिठाई का डिब्बा है, उस पे प्लास्टिक का रैपर का क्या उपयोग है? या आप शादी का कार्ड भी देते हैं तो प्लास्टिक का कवर लगाने का क्या उपयोग है? सभी नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए, और हम इसको पूरे मूवमेंट के रूप में मिशन लाइफ को जो चलाना चाहते हैं, और लोगों को भी अपनी अपनी सोसाइटी के अंतर्गत इन सारे विषयों को ध्यान देना चाहिए। और जो सरकार का जो एनकैप का कार्यक्रम है वो म्यूनिसिपैलिटियों के जो गैप एनालिसिस रहते हैं, मान लीजिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है, ई वेस्ट कंट्रोल पे है, व्हीकल पॉल्यूशन पे है, उसको भरने का काम भी हम लोग करना चाहते हैं। एक जो बड़ा है, हमको अच्छी वायु देने के लिए शहरों में अच्छे पेड़ होने चाहिए, तो हम सबको कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम अभियान जरूर चलाएं। और मैं ये मानता हूं कि प्रदूषण मुक्त जीवन सबको जीने का अधिकार है, और हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें। और 11 वर्षों में जो इनमें विषय करा है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। सर, शबाना पीटीआई वीडियो से मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से बंगाल में इनफिल्ट्रेशन बढ़ता है, ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, बंगाल कनेक्टेड है बॉर्डर एरिया से, अभी बांग्लादेश में भी इशू चल रही है, ऐसे में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जबकि केंद्र का विषय है, ये बीएसएफ उनके अंडर में है, बार बार बीएसएफ के ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाता है, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि खामियाजा है, कहीं कुछ भी कमी है जो सेंट्रल इसको सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। आपका क्या है रिएक्शन? वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय होता है, और इन्फिल्ट्रेशन के कारण सबसे बड़ा परिणाम तो लॉ एंड ऑर्डर पे आता है। और हर राज्य सरकार का दायित्व है कि अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो उस पर काम करे, सहयोग करे। उनका रुख ही इस पे सहयोगात्मक नहीं रहता है। देखिए, अपीजमेंट और इन्फिल्ट्रेशन ये दो अलग अलग चीजें, दो विषय हैं जिसमें ममता बनर्जी जी को महारत हासिल है। वो ये जो भेद करना होता है ना, इसको नहीं करने देती। और राजनीति में कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, थोड़े लोगों को लंबे समय के लिए बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हर समय नहीं बना सकते। ममता बनर्जी जी की इस असलियत को बंगाल की जनता पहचान गई है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, और ये पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार का जो सकारात्मक सहयोग है उसको भी वो नहीं ले रही। आप तो इसकी बात कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने ये प्रश्न पूछना भी चाहता हूं, रखना भी चाहता हूं कि भाई पीएम जनमन योजना है,
वो तो ट्राइबल कम्युनिटी में भी जो लास्ट माइल पे जो ट्राइबल है उसके लिए है, आप उसको क्यों नहीं लागू कर रही? आयुष्मान योजना जो गरीबों के लिए है, आप उसको क्यों नहीं लागू कर रही? बंगाल में बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि ओबीसी में उनका जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है उसका साइंटिफिक आधार क्या है? और हमारा जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, वो छोटे जो हमारे स्मॉल टूल वर्कर्स हैं उसको भी वो लागू नहीं करना चाह रही। ग्रामीण सड़क योजना को लागू नहीं करना चाह रही। तो जो भारतवासियों के लिए तो कुछ लागू नहीं करना चाह रही और बांग्लादेशियों के लिए वो अपनी हताशा जता रही है। तो ये तो पूरी तरीके से एक विफलता का मॉडल ऑफ अनसक्सेसफुल गवर्नेंस इज ए बंगाल गवर्नमेंट टुडे। Sir, I'm Joyashree Nag from Economic Times. In connection with that appeasement politics and this infiltration, I would like to ask you one thing. There are allegations about demographic changes as well. And with turmoil going on in Bangladesh, a lot of infiltration also happening. What is your observation about that? And secondly, regarding climate change, India is witnessing a lot of climate change, and the national adaptation plan has been figured out by the central government. So how do you want to throw a light on that? थैंक यू। सबसे पहला विषय जो इन्फिल्ट्रेशन का विषय है, उसके संबंध में जितने भी कानून केंद्र ने पास किए उसको विरोध करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया। जो स्टेप केंद्र ने उठाए उसमें असहयोग करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। उसके जो समाधान के रास्ते हैं उसका पॉलिटिकल तरीके से मिसयूज करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। और इसलिए राजनीति में दोहरा रवैया, ये दोहरी बातें, ये नहीं चल सकती। समय आने पे बंगाल की जनता इसका माकूल जवाब देगी। जहां तक क्लाइमेट चेंज के संबंध में आपने एडेप्टेशन प्रोग्राम की बात कही है, केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं चला रही जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर नाम दिया, प्रोजेक्ट मिष्टी। तो मिष्टी हमारे यहां तो मिठाई है। सो मैंग्रोव सी शोर इनिशिएटिव फॉर टेंजेबल इनकम। तो ये अब आम्फान भी जो अपने आया, तो ये जो हमारा समुद्री इलाका है 5700 किलोमीटर की, जो इसमें मैंग्रोव लगाने का जो प्रोग्राम है, इसको बजट अनाउंसमेंट किया गया। अभी भी हमारी सुंदरबन जैसी धरोहर जो है, मतलब जिस धरोहर को यूनेस्को की धरोहर माना जाता है, उसको बंगाल सरकार के प्रोटेक्शन में घुसपैठियों द्वारा समाप्त किया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज के साथ भी सबसे बड़ा धोखा बंगाल सरकार कर रही है। हमारा जो बंगाल टाइगर है वो हमारा प्राइड है, हमें उस पर गर्व है, हमें यूनेस्को की उस विरासत पे गर्व है। लेकिन इस इधर घुसपैठ के लिए जो जिम्मेदार है वो तो उनकी सरकार है। और सरकार जो अडेप्टेशन के प्रोग्राम लेकर के आ रही है, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड जैसा विषय हो, चाहे कुसुम योजना जैसे विषय हो, उन विषयों को तो रोकने का काम भी बंगाल सरकार करे। हम तो समुद्री किनारे पे सबसे ज्यादा तूफान से प्रभावित क्षेत्र में है। और मेरा ये मानना है कि जो नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी प्रोग्राम है उसमें बंगाल सरकार को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। Sir, India, Bengal shares a long border with Bangladesh, and in that connection there has been lot of issues about acquisition of land or giving the land is a major problem. West Bengal government refuses to give land to the BSF. These allegations are there. So what is your observation? Because ये दो देशों के बीच में विषय चल रहा है, इसके जो संबंधित प्रवक्ता है वो इसका जवाब देंगे। सर, मैं सुप्रियो गुहो फ्रॉम TV9 बांग्ला। आपने मैंग्रोव के बारे में कहा, सुंदरबन में जो मैंग्रोव है वो मैंग्रोव को काट के नेचर को नष्ट करके रिसोर्ट वेडिया बनाया जा रहा है। लोकल जो टीएमसी वर्कर और लीडर है उन लोगों की मदद से ये काम चल रहा है। आपका क्या कहना है? आपने मुझे जानकारी दी है, मैंने निश्चित रूप से कुछ समय पहले भी जानकारी मांगी और हम उन पे एक्शन भी लेंगे। सर, आपने वो फ्री फेयर इलेक्शन के बारे में जो कहा कि इलेक्शन कमीशन वो कर देंगे, लेकिन इधर आपसे ये प्रश्न है कि सेंट्रल फोर्स जो है इसके निगरानी में इलेक्शन हो रहा है इधर,
लेकिन सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय होता है पश्चिम बंगाल का जो पुलिस है वो सिस्टम के अंदर, तो उसी के बावजूद रिगिंग दिखा जाता है और जो पिछले इलेक्शन में दिखा गया। आपको ये लगता है कि ये डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स में जो पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार आना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? इलेक्शन कमीशन सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर रहा है और जो इलेक्शन कमीशन निर्णय करता है हम उसके साथ हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम तो इस बार बंगाल की जनता ममता बनर्जी जी को हरा के देगी। Sir, this is Ishan from ABP Online. Sir, we are observing one after another case that the electoral role of West Bengal is not sacrosanct. Time and again we are seeing that in many cases people from Bangladesh who are Bangladeshi citizens, they are being found in the electoral rolls of West Bengal in many corners of the state. So, which is the actual depth of this concern? And whether the electoral role is sacrosanct or not, isn't it a matter of big concern and anxiety for you? And if the electoral role is not sacrosanct, then how? से ये सारे तथ्य चुनाव आयोग के समक्ष रखेंगे, वो इस पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय करेंगे। Sir, this is Sweetie from Indian Express. Poll violence have been an issue in Bengal. जब भी कोई इलेक्शन आता है, ये पॉलिटिकल पोल वायलेंस तो बहुत छोटी बात है, डेली लाइफ वायलेंस हो गया। नहीं, मैं कह रही हूँ पोस्ट पोल वायलेंस भी बीजेपी के लिए एक इशू रहा है सर। मैं भी कह रहा हूँ डेली। अब आप क्या कहोगे, जो मुर्शिदाबाद में घटना हुई वो पोस्ट पोल है, वो तो वायलेंस इन गवर्नेंस है। यही तो मेरे को सबसे बड़ा दुख है। मतलब आप जैसे पत्रकार भी बताइए, संदेश खाली जैसी घटनाएं बताइए, मालदा जैसी घटनाएं बताइए, मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं, ये तो गवर्नेंस प्रोटेक्शन में अगर वायलेंस होगा तो कैसे काम चलेगा? अपीजमेंट के लिए वायलेंस होगा तो कैसे काम चलेगा? कम्युनिटी टारगेटेड करके वायलेंस होगा तो कैसे काम चलेगा? बंगाल का आदमी अपने सरकार के राज में अपना गांव छोड़ करके जा रहा है। पोस्ट पोल तो आप बिल्कुल इसको 2 महीने के लिए सीमित कर रहे हैं। बंगाल की जनता माफ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने केवल 2 महीने वायलेंस नहीं देखी, पूरे 4 साल वायलेंस को झेला है और इसका उनको जवाब देना। सर, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, पोस्ट पोल वायलेंस एक इशू है बीजेपी वर्कर्स के लिए भी, वी हैव सीन इन द पास्ट। So now that election is nearer, how do you prepare your ground workers and आप उनको क्या मैसेज देंगे? Because Bengal में this has been an issue on ground. वैसे मैं आपके प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। हम पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बलिदान हुए हैं, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है और हम डेमोक्रेटिक तरीके से तृणमूल को पूरी तरीके से साफ करके इसका जवाब देंगे। सर, मैं एन अर्जुन अमर उजाला से बोल रहा हूं। सर, आप जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 2 इशू हैं, एक तो स्वच्छ गंगा को लेकर के किस तरह के काम चल रहे हैं सर बंगाल में, और आपका ध्यान एक आकर्षित करना चाहूंगा कि आदि गंगा जो कि बंगाल में थी वो एक नाले में परिवर्तित हो गई, जिसको देखकर आत्मा बड़ी पीड़ित होती है। उस बारे में आप लोग किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि आदि गंगा को बचाने की? आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले 2-1 साल पहले नमामि गंगा की एक बड़ी बैठक भी हम लोगों ने कलकत्ता में करी थी और इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट सब जगह बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ है और मैं स्वयं भी बहरामपुर के पास जो गंगा 2 भागों में बढ़ती है उसको देख के आया हूँ। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दी जा रही है उसका प्रयोग करना चाहिए और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को भी जागरूक होकर इसमें भाग लेना चाहिए। एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं गंगा नदी के अंतर्गत, वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन कर रहे हैं, क्योंकि गंगा का जो पानी की मात्रा की जो शुद्धता है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को बना रहे हैं। हम डॉल्फिन मित्र भी बना रहे हैं। मैं अपने राजनीतिक साथियों को भी कहूँगा कि गंगा नदी के किनारे एक जागरण कार्यक्रम करके भी डॉल्फिन मित्रों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक ये सवाल था कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो असम में माजुली जो द्वीप है वो धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है, वो समाप्त हो रहा है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई ऐसे हमारे पास जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है हम चिंता कर रहे हैं। जी सर, माइसेल्फ झिलम फ्रॉम एबीपी आनंद।
रिगार्डिंग दिस, आप जैसे बोल रहे थे राज्य सरकार का कोई सहायता नहीं मिल रहा है, कोई प्रकल्प नहीं कर रहा है, ये जलवायु को लेके और एनवायरनमेंट को लेके आपको क्या विचार है? राज्य सरकार कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको लेके, गंगा मैं को अपने लेके? विचार पूरे दे चुका हूं, 11 वर्षों पे दे चुका हूं। सर मैं शोडो ज्योति हूँ एनकेटीवी से। यहाँ कोलकाता में एक ईस्ट कोलकाता कोलकाता में एक ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है जिसके ऊपर कई वर्षों से अवैध निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ का जो लिगेसी वेस्ट वो भी बढ़ रहा है, पर सरकार यहाँ पर उदासीन है। ये मुद्दा जो है ये संसद में भी समीक भट्टाचार्य जी ने उठाया था, इसके ऊपर क्या कार्रवाई है आपका मंत्रालय से? इस सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से बदलना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर मैं सर वन क्वेश्चन, सर एक सवाल सर वन लास्ट, मेरी 155 की फ्लाइट। सर एक क्वेश्चन